Can you just write this part, Mariam? Equilibrium constant. Wait a second. How many pages should she leave? Harsha, tell me. So for me, it took 8 pages. You have a small notebook. Yeah, sir. Okay. Noha, how many pages? I think 4 pages would be 3 pages, na? ठीक है. So leave 3 pages, Mariam, and then write equilibrium constant KP, Okay, sir. You have been Ali both, na? See, actually, in NCERT, like chemical equilibrium के अंदर ही आपके पास ionic equilibrium है. Okay, okay, sir. Okay. Let me know, Mariam, once you're done. Okay, sir. Sir, today I may leave early, like by 7:30. Okay, Harsha. Actually, your brother is here. Yes, sir. We have to go to the airport. अच्छा, okay, fine. Done, sir. Now you write this part. Kp is equal to Kc RT to the power number of moles of product minus number of moles of gas and reactant. Then Kp is equal to Kc RT delta Ng. ठीक है? I'm going to remove this part. Yes, sir. ठीक है. You write this whole thing after that, है ना? यहाँ से start करना, यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है? Yes.
Done, sir. डन, ठीक है। Fine. So last time we saw what is the relationship between KP and KC. Today we are going to do a few questions related to that. Okay. Now write the first question. In your NCERT, there is one question. Write this down. This is SO2 and this is स्टार्टिंग का लाइन लिखिए फिर हम उसको ठीक से भेज रहे हैं आपको। Okay, this is one of the simplest questions that you can get. It is just basically mathematics, na? See, Kc is equal to the concentration of product to its power divided by the concentration of reactants to the power whatever it is. यहाँ पे product में you have SO3, so write SO3, concentration of SO3 to the power 2 because the stoichiometric coefficient is 2, and in the reactant we have SO2 first, concentration of SO2 to the power 2, and then concentration of O2. Okay, and this is going to give you Kc. Please write it down. Plug in the values and get the answer for Kc.
All the concentrations are given, है ना? Just need to plug in the values. Okay, Alia. Yes, I think that is correct. What about others? अच्छा, guys, send me on WhatsApp whatever you have done till now. कुछ तो किया होगा आप लोगों ने. SO3 SO2 का कंसंट्रेशन डाला होगा, उसके बाद कैलकुलेशन तो करना है बस. I just need to do some calculations. Yeah, correct. Mariam, yeah, approximately it is correct. Okay. Harsha, what about you? So we should send an WhatsApp. Yeah, WhatsApp. Where did you send? I think you have sent it. Okay, I just saw it. Yeah, it's fine. It's correct. Now we have, let me show you. SO3, the concentration of SO3 is 1.9. This will be squared divided by SO2. It is 0.6. It will be squared multiplied by O2. It is 0.82. Fine. Can you do any cancellations here? No, I mean there is just calculations. अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देखिएगा. 1.9 it is moles, right? Molar. This is molarity ना, moles per liter. तो 1.9 स्क्वायर यानी कि यहाँ पे भी मोल का स्क्वायर होगा. Here 0.6 square means mole square and 0.82 means there will be molar once again. Now molar square will get cancelled, and the answer that you're getting 12.22. It will be divided by mole. That means per mole like this. So include the units also. Some teachers are very picky about the units, even in KC. Although the units in KC are not very important, they don't have any physical significance. They don't have any significance, rather. But still, some teachers are very picky. If they see in the answer sheet जो उनको teachers ने दिया है, उसमें अगर पर मोल दिया हुआ है, पर मोलर दिया हुआ है, and if you have not written तो वो मार्क्स काट सकते हैं. ठीक है. खैर, let us look at one more question. It's kind of similar, but it needs a bit more calculations. ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा. At a certain temperature and a total pressure of 10 to the power 5 Pascal. So we have total pressure.
total pressure, it is equal to 10 to the power 5 Pascal. It is saying iodine vapor contains 40% iodine vapor contains 40% by volume of I atoms. क्या समझ में आया आपको इससे बताइए? Did you guys understand anything? क्या मतलब है इसका? No idea. ठीक है, ध्यान दीजिए. They are saying that, let's suppose, एक second, so I will reshare the screen. ठीक है, ध्यान दीजिए. Let us suppose we have a container. In this container we have iodine. Iodine मतलब क्या है आपके पास? Iodine vapor मतलब I2 है ना? Iodine is what? Iodine vapor, it is existent in nature ना, तो क्या होगा? I2. I2 is present. I2 भी गैस है. Now here we have 10 to the power 5 Pascal. आपके पास क्या है? I2 vapors है. I2 vapors. I2 which is gas. They are saying it contains 40%, 10 to the power 5 में Pascal में iodine vapor contains 40% by volume of I atoms. यानी कि if you are taking I2 gas, there exists an equilibrium जिसमें you get 2I gas. मतलब you're also when you take I2 gas ना, तो आपको साथ साथ I atoms भी साथ में मिलते हैं. कितने? 40%. For example, if you take 100 ml of I2, ठीक है, तो वहां पे एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा जिसमें से आपको 40 ml क्या रहेगा? 40 ml विल बी आयोडीन लाइक दिस. ठीक है, चलिए अब इसी इक्विलिब्रियम को पहले समझते हैं. I2 and here you are having 2I. So this I2 is how much? Sorry, this 2I is 40%, और ये I2 कितना होगा फिर? रिमेनिंग 60%. Both of these are by volume ना? Both of these are by volume. Now partial pressure. Sir, can you explain again? Again? Yeah. Which part, tell me? Say the 40% by volume. Iodine vapor contains 40% by volume of I atoms. 40% by volume of I atoms. Where do I have I atoms? Reactant या product? Reactant में I molecule है, यहाँ पे I atom है. Make sense? Okay, sir. है ना? This I2 is molecule. This iodine is atom. ठीक है हर्षा? Yeah, sir. ठीक है, ठीक है. So partial pressure of I atoms की अगर हम बात करें, then this will be equal to, we have, what is the total pressure? 10 to the power 5 Pascal, and how much of it? 40% we have. 40 upon 100. So you can cancel these two, and कितना हो जाएगा ये? 4 by 10 मतलब 0.4. 0.4 into 10 to the power 5 Pascal is the partial pressure of iodine atom. Partial pressure of I2 will be equal to how much? 0.6 into 10 to the power 5. Makes sense? Yes or no? Please tell me, guys, all of you. Does this make Yes, sir. sense? ठीक है. Now we have got the pressure of I2 and we have got the pressure of iodine atom also. Molecule और atom दोनों का मिल गया. And they are asking what? They are asking Kp. तो Kp को लिख सकते हैं इस तरह से. Kp will be equal to the product में क्या है आपके पास? Iodine, pressure of iodine, pressure due to iodine whole square divided by pressure due to I2, and there will be no stoichiometry ना, यहाँ पे stoichiometry कितना? 1. So to the power 1 will be same thing, है ना? So you'll just write I2. Now pressure due to I atom is equal to how much? 0.4 into 10 to the power 5 whole square divided by 0.6 into 10 to the power 5. ठीक है, so this you can write it like this. 0.4 into 0.4 into 10 to the power 5 into 10 to the power 5 whole divided by 0.6 into 10 to the power 5.
10 to the power 5 and 10 to the power 5 will be cancelled. 0.4, this will be 0. If I divide by 2, it will be 2s are. This will be 0.3. Now, can you guys calculate this? How much it will be? 0.4 into 0.2 divided by 0.3. जो भी होगा, it will be multiplied by 10 to the power 5. Calculate the value. Write this down. Send your answers on the chat. You got the answer. Yep, Mariam, correct. 0.26 into 10 to the power 5 पास्कल. ठीक है, पास्कल हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज यू कैन सी हियर यू हैव स्क्वायर ना, तो यहाँ पे पास्कल का भी स्क्वायर होगा और यहाँ पे सिर्फ एक पास्कल. कैन इरेज द पास्कल्स, यहाँ पे एक पास्कल भी आ जाएगा. ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 0.26 into 10 to the power 5 पास्कल. चलिए गाइस, अब एक जो कंसेप्ट है ना, आप नोट करके लिखिए. नोट द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड and pure liquid is taken as unity. Unity मतलब क्या होता है? वन. ठीक है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के जो कंसंट्रेशन है उसको कैसे लिया जाता है? उनको वन लिया जाता है ना. वी डोंट राइट द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड. अगर आपके इक्विलिब्रियम में कहीं भी प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड आ गया ना इन द केमिकल रिएक्शंस, सो उसका कंसंट्रेशन नहीं दिया रहेगा, एंड फॉर दैट यू विल हैव टू प्लग इन द वैल्यू दैट इज वन. ठीक है, उनको कंसिडर ही नहीं किया जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव A solid plus B aqueous gives you C solid plus D gas
ऐसे केसेस में आप ए और डी को कंसिडर नहीं करेंगे केपी या केसी में। आप केसी के लिए सीधा क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, ए के लिए क्या हो गया 1 और सी के लिए भी क्या हो गया 1। मेक सेंस, याद रहेगा। अच्छा, अब देख लीजिए, मेक सेंस तो नहीं करेगा आपको, ये आपको समझ में बस आ गया होगा, ठीक है 1 लेना है, पर लेते हैं ऐसा क्यों है, प्लीज हियर गाइस, लेट अस सपोज वी हैव अ सॉलिड लाइक दिस। ठीक है, अब सॉलिड में कुछ रिएक्शन हुआ, सॉलिड थोड़ा सा रिएक्शन, और सॉलिड से थोड़ा सा कुछ रिएक्ट कर गया। ठीक, नाउ व्हाट इज द चेंजेस, यहां से यहां तक नंबर ऑफ मोल्स इज डिक्रीज्ड और इसका वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ। मेक सेंस, यस और नो, प्लीज टेल मी, है ना। Yes, sir. एंड व्हाट इज कंसंट्रेशन, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। If number of moles, the numerator is also decreasing, the volume is also decreasing, meaning the molarity will be constant. Make sense, Yes, sir. है ना। Now if something is constant, that means it is not going to affect this molarity is तो already constant ना। और equilibrium का definition क्या होता है, when the concentration of reactant and product are constant। तो जो आपका, if you have certain species which is whose molarity or whose concentration is always constant, there is no need of considering it in the equilibrium कांस्टेंट्स इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। मेक सेंस, ये तो पहले से ही कांस्टेंट है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इक्विलिब्रियम को अचीव करने में, या इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट में और नॉर्मल रिएक्टिंग स्टेट में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, दैट इज व्हाई वी कीप द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड एज कांस्टेंट। ये तो सॉलिड की बात हो गई, लिक्विड में भी ऐसे ही होगा ना। यू हैव लेट अस सपोज वाटर, इतना आफ्टर रिएक्शन water decreased, so number of moles is also decreasing, you can see the volume is also decreasing। ठीक है, सेम थिंग्स हैपन फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज करते हैं, वॉल्यूम भी डिक्रीज करते हैं, दैट इज व्हाई वी कीप इट एज कांस्टेंट। आलिया, मरियम, नुहा एंड हर्षा, समझ में आया आप लोगों को। Yes, sir. ठीक Yes. है, चलिए एक काम कीजिए, आई एम गिविंग यू 3 equations, you have to write kc for each of them। ठीक है, जहां सॉलिड और लिक्विड आ रहा है वहां पे उनका सॉलिड और लिक्विड मत लिखिएगा। ठीक है, those things should be not considered। चलिए,
Guys, send your answers on my WhatsApp. If somebody's done. What? Second one, yes, correct, very good. Third one's C2H5, yeah. Yes, Alia, correct, very good. Harsha, looking at your answers. The first one is fine. Second one, O2, O4, and O2. Yes. And other answers. Correct, Harsha, very good. Mariam, just waiting for you. Send quickly. ये मरियम का है या आलिया का है ना? Mariam, you have not sent. Noha, looking at your answers. Yep, correct, very good. Noha. It's fine. Mariam, are you having difficulty? Yes. No, sir. My mobile got stuck. Can you show me? I just sent. So you have sent. कैन यू नहीं यार, देखिए फिर से देखिए, कितने गलती की है, देखिए सेकंड वाला, देखिए सेकंड वाला मरियम, सी द सेकंड वन, डू यू सी योर Yes, sir. मिस्टेक? Send once again. Okay. Nope. Once again it is wrong. देखिए सॉलिड्स को नहीं लेते ना मरियम, राइट मरियम? Yeah. तो सेकंड में सॉलिड है ना आपका Cu2 CuNO3 होल ट्राइस, तो उसको आपको लिखना ही नहीं है, मेक सेंस? Yes. चलिए ठीक है. So for the first one, it is going to be the whole thing. Kc is equal to the concentration of product divided by the concentration of reactant. Second, this will be not considered. Oops. This will be not considered, and CuO will not be considered. So in the product, we just have concentration of NO2 whole 4 into the concentration of O2.
For the third question, we are not going to consider H2O. Everything else will be considered. So Kc will be equal to the concentration of CH3COOH multiplied by C2H5OH divided by CH3COO C2H5. ठीक है, चलो. After this, you are going to write the topic reaction. नहीं, एक सेकंड, एक और चीज लिख लीजिए आप. जो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस है ना, they are divided into two categories. Equilibrium reactions are divided into two categories. एक को बोलते हैं homogeneous equilibrium, और एक को बोलते हैं heterogeneous equilibrium. Now, what is homogeneous equilibrium? The equilibrium which have, right, equilibrium that has all species, both है ना, reactant और product, all species in same phase. Same phase का मतलब या तो सारे solid में होंगे, या तो सारे liquid में होंगे, या तो सारे gas में होंगे, या तो सारे aqueous phase में होंगे. ठीक है, so I can say that this first reaction that we are having ना, देखिए, this is also gas, the reactant is also gas, product में सब gas है, so this is homogeneous. Heterogeneous में क्या होगा? Species are in different phase. Species are in different phase. ठीक है, तो for the second and third reaction you can say that यहाँ पे आपके पास solid आ गया, solid and gas आ गया, so you can say that this is heterogeneous equilibrium, और यहाँ पे this is also heterogeneous equilibrium. ठीक है, चलिए, this is I mean very small definition, but अगर ये direct definition आ जाएगा ना, what is heterogeneous equilibrium, what is homogeneous equilibrium, तो फिर मतलब आप शायद फंस जाए. ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है बस. अब इसके बाद आप लोग लिखिएगा, that is very important, reaction quotient. This is important stuff, okay? Reaction quotient. Any questions, guys? Alia, are you trying to say something? Alia? No, sir. ठीक है, reaction quotient, that is Q. ठीक है, reaction quotient क्या है? आपको बड़ा ही अजीब लगेगा सुन के. That Q is equal to concentration. Let us say, wait a second. If we have a reaction AA plus BB gives you CC plus DD, then reaction quotient Q, it is given by the concentration of A to the power A, the concentration of, sorry, my bad. Product upon reactant hota hai, my bad. C to the power C, D to the power D divided by concentration of A to the power A and B to the power B. But the difference is the concentration of A, B, C, and D are not the equilibrium concentration. ठीक है, as you saw ना, equilibrium constant का भी यही फॉर्मूला, when you are seeing Q का भी सेम फॉर्मूला. ऐसे कैसे? तो equilibrium constant is for a particular state. जब equilibrium achieve हो जाए, then the concentration of product upon reactant is known as equilibrium constant. But when the reaction is happening, when you have started the reaction, and when the reaction is happening, when the change is happening, at those times when the concentration is changing, we don't define equilibrium constant, we rather define reaction quotient. ठीक है, तो reaction quotient is, it has the same formula as that of equilibrium constant, but the concentration that we take in reaction quotient are not the equilibrium concentration. These are any concentration other than the equilibrium concentration. समझ में आया आप लोगों को? नहीं समझ में आया? टेल मी गाइस. आलिया, मरियम एंड नोहा, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. आलिया, मरियम एंड नोहा, मेक सेंस? Yes, sir. याद रहेगा ना?
Yes. पक्का? ठीक है. So at equilibrium what happens? At equilibrium यही जो Q है ये क्या बन जाता है? Equilibrium constant K बन जाता है. Make sense? Yes or no? Please tell me guys. ठीक है. Yes, sir. चलिए इसको लिखिए जरा. Raise your hand once you're done. Waiting for Mariam and Noha. अब ध्यान दीजिए जरा. अब समझने वाला पार्ट है. ठीक है. इक्विलिब्रियम क्या होता है? Tell me, what did I tell you guys last class? What is equilibrium? क्या? What is the gist of equilibrium? Alia and Noha, क्या लिखाया था हमने equilibrium के बारे में? Rate of forward reaction equal to backward reaction. नहीं, ये तो लिखने वाली बातें हैं. समझने वाली बात जो थी. There is no apparent change. हाँ, there is no apparent change. Very good. आलिया याद है? या आप नहीं आए थे उस वक्त तक? सर आए थे लिखा है. हाँ. अच्छा ठीक है. देर इज नो अपेरेंट चेंज. ठीक है. जब तक चेंज होता रहेगा तब तक इक्विलिब्रियम नहीं. जब चेंज खत्म तो इक्विलिब्रियम. ठीक है. अच्छा, व्हेन चेंज इज नॉट हैपनिंग तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगे और आपका इक्विलिब्रियम जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो है इक्विलिब्रियम अचीव कर जाएगा. ठीक है. तो ध्यान से सुनिएगा जरा. मानते हैं, एक चीज मानते हैं. देखिए, अगर आपके पास ना कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको वैल्यू दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1000. 10,000 क्या मतलब है इसका? और आपको रिएक्शन दिया हुआ है ए गिविंग बी, या फिर आप इक्विलिब्रियम मान के चलना चाहते हैं तो इक्विलिब्रियम ऐसे लिख लीजिए आप. ठीक है. और आपको कितना दिया हुआ है? 10,000. क्या मतलब है इस चीज का? क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? आलिया, मरियम एंड नोहा, कुछ समझ में आ रहा है इससे? क्या मतलब इसका? डू यू सी एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ केसी ऑन दिस रिएक्शन? इज केसी टेलिंग यू एनीथिंग अबाउट दिस रिएक्शन? अभी अभी बताइए आपको. इज इट टेलिंग यू एनीथिंग या नॉट टेलिंग यू एनीथिंग? कुछ आपको समझ में आ रहा है? नोहा? यस नोहा, टेल मी. It's telling the concentration. इट्स टेलिंग द कंसंट्रेशन. अच्छा, और आलिया? अब देखिए जरा इसको थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करते. देखिए, 10,000 बोले या 10,000 अपॉन 1 बोले, बात एक ही है. सही है? क्या ख्याल है? Yes, sir. सही है. अच्छा, और केसी क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए. करेक्ट है? सही है. Yes. इसका मतलब क्या है? व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड देन फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ ए यू विल हैव 10,000 मॉलिक्यूल ऑफ बी. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है. मेक सेंस? अब देखिए जरा, सुनिए. अगर आपको बोला जाए के सी इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -5, इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन एक और जीरो, कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए. नाउ व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये होगा कि व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड फॉर 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बी वी विल हैव 10,000 मोल्स ऑफ ए.
मेक सेंस आलिया, मरियम एंड नोहा? Yes, थोड़ी sir. थोड़ी Yes, sir. बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? ठीक है। Yes. ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए आपको कि बोलता क्या है ये, है ना? रिएक्शन के मामले में ये आपको समझ में आ गया, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा। आपको इस रिएक्शन के बारे में बोला हुआ है कि लेट अस सपोज इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, कितना है भाई? बोलिए जरा। 1.5, इसको क्या लिख सकते हैं? 3/2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा। वी स्टार्टेड विथ 5 मोल्स ऑफ ए। हमने कहा स्टार्ट किया? 5 मोल ऑफ ए, और बी अभी 0 है। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट यू कैलकुलेट द क्यू। क्यू कितना होगा? बी इज 0 और ए, ऐसे होगा ना, क्यू इज इक्वल टू ए बाई बी बाई ए। यही तो होगा। रफ आइडिया, रफ 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 खेल रहे हैं हम लोग, अभी रफ खेल रहे हैं। ठीक ना? देखिए, हम ना रटाना नहीं चाहते, बहुत छोटा सा कंफ्यूजन निकलेगा, लेकिन ये कंक्लूजन ऑर्गेनिकली आपके पास आना चाहिए, इस वजह से ध्यान दीजिएगा। क्या लिखेंगे इसको? बी बाई ए लिखेंगे, राइट? चलिए, अभी क्यू 0 है और ए कितना है? 5, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 0। ठीक, तो क्यू जो है, देखिए, क्यू को अभी के की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी न्यूमरेटर को जब हम बढ़ाएंगे तभी ये वैल्यू बढ़ेगी और के की तरफ पहुंचेगी, बिकॉज वी हैव टू अचीव इक्विलिब्रियम ना। एट द एंड सारे प्रोसेस होने के बाद इक्विलिब्रियम अचीव होता है। सो व्हाट वी विल राइट, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? दैट ओके फाइन, वी स्टार्टेड विद 4 मोल। अब सॉरी, वी स्टार्टेड विद 5 मोल। नाउ 1 मोल ऑफ ए विल कन्वर्ट टू बी, तो ए का बचेगा 4 मोल, एंड व्हेन वी हैव 4 मोल ऑफ ए, बी का होगा 1 मोल। मेक सेंस? यस और नॉट? प्लीज टेल मी गाइस। Yes, बात sir. समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए, अब फिर से अगर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी कैन कैलकुलेट द क्यू। ठीक है, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट द क्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच? इट विल बी इक्वल टू, टेल मी हाउ मच? बी बाई ए, बताइए कितना हो जाएगा? बी बाई ए 1/4. 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25। तो अभी भी हमको न्यूमरेटर बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो 1.5 तक पहुंचेंगे। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो एक और रिएक्ट कराते हैं। आपका क्या हो जाएगा? 3 मोल ऑफ ए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 मोल ऑफ बी। एट दिस पॉइंट आई विल कैलकुलेट द क्यू विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? टेल मी गाइस। 2/3. 2/3। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 पॉइंट समथिंग, है ना? बिकॉज 3 वन जा तो होगा नहीं, 3 जीरो सा करना, पॉइंट लगाना पड़ेगा। अभी भी हमको न्यूमरेटर बढ़ाना पड़ेगा, दैट मीन स्टिल आई विल गो फॉरवर्ड। I will have to make B. So 1 more mole will react and it will become 2 mole of A, and here we'll have 3 mole of B. Now at this point, if I calculate the reaction quotient, this will be equal to how much? 3/2. 3/2. This is equal to 1.5. Now अब क्या होगा? Tell me. Up we have reached equilibrium. Now since we have reached equilibrium, now the concentration of A and B will not change. Even though मान लेते हैं, ये बात मान लेते हैं कि आपका A से कुछ मोल B बनाया, उतना ही मोल B से A का बन जाएगा। The rate at which A is making B will be equal to the rate at which B is making A. ठीक है, at this point what will happen? The reaction, I mean, it is not really right to say reaction will stop, but it will stop. Make sense? Yes. है ना? रिएक्शन रुकता तो नहीं है, बट हमारे लिए तो कम से कम रुक जाता है ना, because we are not seeing any apparent change. Then we say that okay fine, equilibrium has been achieved. Although equilibrium is a dynamic phenomena, that means changes are happening but there is no apparent, मतलब कैंसलेशन वाला चेंज हो जा रहा है। ठीक है, सो आपने अभी देखिए बातों ही बातों में ये समझ लिया कि अगर आपको Q दिया हुआ है, if they have given you the value of Q, then you can say whether the reaction is moving forward or backward. अभी हम लोगों ने क्या सीखा? जब तक आपका Q जो है K से छोटा रहेगा, Q is less than K, then reaction will move forward, यानी प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ते रहेगी। When Q is greater than K, then backward reaction will be dominant, और प्रोडक्ट की, देखिए, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तभी जब रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन घटेगी, दोनों चीज साथ साथ होती है ना? तो नाउ व्हाट विल हैपन? When Q is greater,
तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटेगी और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ेगी. When Q is equal to K, then we will say that the concentration of product and reactant are same. बताइए, सेम लिख दे क्या यहाँ पे? बोलो, सेम लिखे हैं? क्या लिखे हैं? बताइए क्या होगा? When Q is equal to K, at this time we have achieved. अरे यार, why my pen is not working? Give me a second. क्या कर रहे थे हम? When Q is equal to K, तो आपका क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम आ चुका है. That means concentration of product and reactant are dash. Dash में क्या फिल करें? बोलिए. Constant. वेरी गुड. कांस्टेंट, नॉट सेम, कांस्टेंट. समझ में आ गई? आलिया, मरियम एंड नोहा. Yes. ठीक है. एक और हमने इससे पहले एक और चीज सीखा था, जो जिसको हमने मिटा दिया था ना, कि अगर आपके पास k की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल 10 टू द पावर 5 से भी ज्यादा, तो उस टाइम क्या होगा? आपके पास प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगा और रिएक्टेंट बहुत कम होगा, है ना? यू हैव टॉट ना, फॉर वन मोल ऑफ रिएक्टेंट देयर विल बी इतना मोल ऑफ प्रोडक्ट. तो इन सब चीजों के बारे में लिखते हैं. अभी आपने समझ लिया. आई एम गोइंग टू राइट सम पॉइंट्स. अगर आपको समझ में ना आए तो हमको रोक दीजिएगा, ठीक है? द टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? प्रेडिक्शन ऑफ extent of reaction. If you have been given the value of k, तो इसको तीन हिस्सों में हम ये करते हैं. When k is less than 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3 से भी कम है अगर, तो आप लोग समझ में आ रहा है ना? k is less than 1 upon 1000. k क्या होता है? Product upon reactant. You can see the concentration of reactant is more. So what you will write? Reactants. ऐसा ध्यान सुनिए, ऐसा such reactions which have the value of equilibrium constant less than 10 to the power minus 3, in those reactions, reactants dominate at equilibrium. जब इक्विलिब्रियम पहुंचेगा तो ज्यादा आपको क्या दिखेंगे? आपको उस टाइम रिएक्टेंट्स ही दिखेंगे, ठीक है? सो वी विल आल्सो से, अगर रिएक्टेंट ही दिख रहा, प्रोडक्ट दिख ही नहीं रहा, देन व्हाट वी विल से? रिएक्शन डज नॉट अकर और रिएक्शन हार्डली टेक्स प्लेस. रिएक्शन हार्डली टेक्स प्लेस. अगर आपको समझ में ना आए कोई बात, बिल्कुल रोक के हमसे पूछ लीजिएगा फिर से, ठीक है? इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं. Then we'll have one in that side. Put it horizontal. ठीक है. अब दूसरा आपका क्या है? Let us suppose when k is more than 10 to the power 3, 1000 से अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या? k is more than 1000 upon 1. तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ज्यादा है, then you will say, लिख लेंगे आप ये लाइन लिखिएगा खुद से, ठीक है? and here I will write reaction goes for completion. मतलब जो आपने रिएक्टेंट को स्टार्ट किया है वो प्रोडक्ट बना देता है. देन हियर वी हैव इन बिटवीन कि 10 टू द पावर minus 3 से तो ज्यादा है k, बट इट इज लेस देन 10 टू द पावर 3. ठीक है? इट इज लेस देन 10 टू द पावर 3. In this case, what I can say is both reactant and product are present in appreciable amount. ठीक है? appreciable तारीफ करने लायक है ना, तारीफ करने लायक अमाउंट में मौजूद है.
ठीक है, लिटरल मीनिंग नहीं है तारीफ करने लायक, इसका मतलब ये होता है एप्रिशिएबल अमाउंट इज जस्ट अ गुड वे ऑफ टेलिंग कि यू कैन मेजर द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, आपको पता चलेगा हाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों ही है। लेट अस कंसीडर ना, अगर पहले केस में हम देखें, इफ यू हैव 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड 1000 मोल ऑफ रिएक्टेंट, आप अगर प्रोडक्ट ढूंढने भी जाएंगे तो नहीं मिलेगा आपको। दैट मीन्स इन दीज केसेस द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट इवन मेजरेबल, इतना कम होता है। इन the other extreme, what we are having, we are having k is equal to greater than 1000. So here we'll have the concentration of product is 1000, concentration of reactant is 1. So even if you are going to go and try to find the reactant, you will not be able to measure it because it is so small, it is so less. ठीक है, so in these extremes the reactant in this extreme 10 to the power 3 वाले में reactant is not present in appreciable amount, मतलब not, it is not present in measurable amounts, measure नहीं किया जा सकता। ठीक है, it is not practically possible to measure it, it is there, we know that because कुछ ना कुछ तो होगा। So only from that sense we are seeing, and in the other case what is their product का concentration measurable नहीं है, but in between both the concentration of reactant as well as product are measurable, that's why we say measurable नहीं, appreciable amount। ठीक है, आलिया, मरियम एंड नोहा, make sense everything? Yes or no, please tell me। Yes, आपने sir. ये लाइन लिख दिया, Sir. you guys wrote this line, Yes, sir. क्या लिखा आप लोगों ने बताइए जरा। Products dominate at equilibrium, ठीक equity. है, वेरी गुड। Now this is the first application, second application लिखेंगे, predicting direction of equilibrium, predicting direction of equilibrium। यहाँ पे हमने 3 केसेस देखे थे, है ना। पहला केस क्या देखा था, when Q is less than equilibrium constant। देखिए Q को K तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेगा, आगे बढ़ बढ़ के, आगे बढ़ेगा तो प्रोडक्ट मिलेगा, आगे बढ़ बढ़ के, है ना। ऐसे समझिए, देखिए याद करने का बस तरीका है ना, यू कैन लॉजिकली अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। बट आप देखिए Q छोटा है, K बड़ा है, तो Q को K तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेगा, राइट जाएगा तो ना पहुंचेगा, ऐसे पहुंचता ना कोई चीज। ठीक है, ध्यान दीजिए। सो व्हाट आई विल राइट लाइक दिस, क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन अकर्स, फॉरवर्ड रिएक्शन अगर होगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, बी केस इज व्हेन यू हैव Q इज मोर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो Q जो है K से आगे बढ़ गया है, आगे भाग गया है, तो उसको क्या होना पड़ेगा, टेल मी। अगर कोई चीज बहुत आगे भाग गया तो उसको क्या होना पड़ेगा, It should go backward. हाँ बैकवर्ड, पीछे आना पड़ेगा ना, तो ऐसे याद रखेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन अकर्स। ठीक, तो फिर क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटेगी। सी में Q is equal to K, then you will say that equilibrium achieved and concentration of product and concentration of reactant will not change। समझ में आ रहा है आप लोग को, मरियम, नोहा एंड आलिया। Yes, sir. ठीक है, एक दो हम लोग सवाल देख लेते हैं ना।
ठीक है, आई होप एवरीवन इज डन राइटिंग। सवाल को देखिए जरा, लिखिए जरा सवाल को आराम आराम से लिखिए। डन राइटिंग, यस और नो प्लीज टेल मी गाइस। लिखिए आप लोगों ने? No, sir. 1 minute. लिखिए, आराम से लिखिए। Done, sir. ध्यान से देखिए। इक्विलिब्रियम, जैसे थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर था ना हमारा, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ना, रादर देन नंबर्स। वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, वैसे इस चैप्टर में भी वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत ही आसानी से आप लोग क्या हो सकते हैं यहाँ पे, यू कैन गो इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे केसी इज गिवन इन विच डायरेक्शन। अरे बाप रे बाप, क्या ही दिया हुआ है। Then that, अच्छा ठीक है भाई, जो आता है कम से कम वो लिखते हैं। केसी विल बी इक्वल टू, रिएक्शन देखा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ बी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय ए स्क्वायर। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी? टेल मी गाइस, कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना दिया हुआ है? टेल मी, कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 कितना दिया हुआ है? into 3 into हम raised to the power. हाँ, 3 इंटू 10 टू दी पावर -4। फिर सी का कंसंट्रेशन कितना है? Same. 3 इंटू 10 टू दी पावर -4 डिवाइड बाई 3 into 10 to the power -4 and square, because a square. Now I can cancel, इससे ऐसे करके cancel हो जाएगा। So Kc will be equal to 1. Now you're like, oh my god, Kc तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 into 10 to the power -3। Kc लेकिन जो डेटा उसके हिसाब से 1 आ रहा है। अब क्या हो गया, गलती क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द मिस्टेक? टेल मी गाइस। सब कुछ सही लगा, आलिया, मरियम एंड नोहा? Yes, sir. सब कुछ तो सही लगा ना, कुछ तो गलती नहीं की हमने। किसी का फॉर्मूला यही होता है, कंसंट्रेशन भी हमने सही प्लग इन किया, कैंसिलेशन भी सही किया। मरियम एंड आलिया, व्हाट डू यू गाइस थिंक? Yes, sir. Thank- कोई मिस्टेक है आलिया, या कोई मिस्टेक नहीं है अभी? मतलब अपेरेंटली तो कोई मिस्टेक नहीं है। नोहा, व्हाट अबाउट मरियम, आपको क्या लगता है कोई मिस्टेक है? I don't know. मतलब आप स्टेप्स स्टेप्स देख के बताइए। मतलब हाँ, ऑब्वियसली मिस्टेक तो है, तभी आपका यहाँ बना No. रहा है। Yeah, हाँ, steps wise, there is no mistake. स्टेप बाय। फिर उसके बाद आखिरी आखिरी स्टेप क्या होगा? केमिस्ट्री तो है ही पागल सब्जेक्ट, पता ही नहीं क्या होते रहता है ना? थोड़ा आप लोग बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सर को, ओ माय गॉड क्या ही हो गया ये। देखिए अब यहाँ पे वर्ड्स का इंपॉर्टेंस है ना। दीज कंसंट्रेशन, इनका एक डेफिनेशन है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी एंड सी एट इक्विलिब्रियम। तभी हम इसमें इसको प्लग इन कर सकते थे। मेक सेंस? ये बात है ना, करेक्ट है? आलिया, मरियम एंड नोहा, कीप योर माइक ऑन गाइस, कीप योर माइक ऑन। Sir, can you repeat? I am saying, when we write Kc, these concentration of reactant and product are the concentration at equilibrium. कोई भी concentration नहीं डाल सकते इसमें। When you are writing this equation ना, then concentration of B, concentration C, concentration of A, all of these should be the concentration at equilibrium. Make sense? यही है ना?
Yeah. Sir. ठीक है, अगर आपको याद हो, देखिए हम लोग ने जो पहला सवाल यहाँ पे लिखा था, व्हाट इज द केसी फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब ये बातें ना बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, मतलब यहाँ तो आप ध्यान नहीं भी दें तो सही आंसर आ गया कि आपने सीधे ये पढ़ा भी नहीं होगा आप लोगों ने, ध्यान देके पढ़ा था No, sir. नहीं ना। हम अगर पूछते इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या आज कहीं आपने लिखा है या सुना है या पढ़ा है, तो आप बोलते नहीं पढ़ा है ना। बट दिस इज इंपॉर्टेंट, आप व्हाई यू वेर एबल टू, मतलब एबल टू इन द सेंस व्हाई इट वाज राइट टू ऐड 1.9 in place of the concentration of SO3 because these concentration are the equilibrium concentration। अब इस सवाल को आप देखिए जरा, did they tell you that these concentration which we have given are the equilibrium concentration? बोला है No. क्या इन्होंने? No, sir. At a given time, what they are saying, they are saying at a given time, कभी भी equilibrium पे पता नहीं, कभी भी at some time what happened, the concentration is 3 into 10 to the power minus 4। तो क्या यहां पे केसी को डिफाइन करना सही रहेगा? नो, एट एनी पॉइंट अदर देन केसी वी हैव अनदर टर्म जो कि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, दैट वाज व्हाट, क्यूसी। इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रादर आई शुड नॉट कट इट इतना ज्यादा इमोशनल होके, है ना। प्रोसेस को ऐसे ठीक कर लेते हैं बस। आप लोगों को तो काटना पड़ेगा अगर आप लोगों ने लिखा है, अगर लेकिन आप लोगों ने लिखा नहीं होगा ना। यहाँ पे आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, यू कैन डिफाइन क्यू, है ना, कि क्यू सी का मतलब रिएक्शन कोशेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, सी का मतलब होता है बस कंसंट्रेशन के टर्म्स में ना, प्रेशर के टर्म्स में नहीं, है ना। इन जनरल अगर आपने क्यू लिखा है तो उसका मतलब ही होता है कि यू आर टेकिंग कंसंट्रेशन। तो आपने ये जो वैल्यू निकाली है किसकी निकाली है बताइए? Concentration. कंसंट्रेशन नहीं निकाली है, क्यों निकाली है, क्या निकाली है आपने? Quotient. हाँ कोशेंट ना, अच्छा हमको कंसंट्रेशन सुनाई दिया, कोशेंट। You have calculated the Q. Now what you need to do, you need to in which direction the reaction will proceed। तो सेकंड एप्लीकेशन या फर्स्ट एप्लीकेशन? अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन लिखा था ना, बताइए कौन से एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, सेकंड या फर्स्ट? व्हाट आर वी प्रिडिक्टिंग? वी आर प्रिडिक्टिंग द, वी आर प्रिडिक्टिंग द, Direction. हाँ तो सेकंड वाला ना। तो सेकंड में हम लोग कंपेयर क्या करते हैं, क्यू और के में, विच इज ग्रेटर, टेल मी, क्यू और के कौन बड़ा है? अरे के तो दिया हुआ है ना, के देखो कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? अरे भाई ऐसी शांति शांति रहेगी क्या? के इज इक्वल टू, टेल मी गाइस, द वैल्यू ऑफ के सी फॉर द रिएक्शन ला 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 इज 2 into 10 2 की into power 10. हाँ अब बताओ कौन बड़ा है, क्यू बड़ा है या के बड़ा है, एक ही करके बताओ। आलिया कौन बड़ा है? Q. क्यू। मरियम? Q. नोहा? Q. पक्का ना, ये टू देख के तो नहीं लग रहा ना आपको कि के बड़ा है? हाँ जी, अरे हाँ है ना, कुछ तो बोला लग रहा है किसी किसी को, है ना मरियम? No, sir. No, sir. नहीं ना, ठीक है। तो Q इज ग्रेटर देन K, तो डायरेक्शन क्या होगा बताइए जरा, Q को पीछे लेके आना पड़ेगा ना, तो टेल मी। Backward. बैकवर्ड। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो आप आलिया ने तो पहले, आलिया आपने पढ़ा, पहले पढ़ा इक्विलिब्रियम, Yes, sir. थोड़ा थोड़ा। मगर अब समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, बिल्कुल एकदम आराम आराम से बिल्कुल पढ़िएगा इक्विलिब्रियम, लोड मत लीजिएगा। इक्विलिब्रियम के बारे में हल्ला बहुत है, ठीक है। आपने मतलब आलिया इज एक्चुअली इन हर ड्रॉपर ईयर, सो शी नोज 11 12 सारा, ठीक है ना। आलिया हल्ला है ना, आलिया इक्विलिब्रियम के बारे में, Yes, sir. है ना। इसीलिए आप भी डर गए, सर आयनिक नहीं पढ़ाएंगे क्या? आयनिक भी पढ़ाएंगे, है ना, वैसे ही पढ़ाएंगे बिल्कुल। तो बिल्कुल आराम से धीमे धीमे से करना है, इक्विलिब्रियम हड़बड़ाने का चीज नहीं है। अब सोचिए ये छोटा सा वर्ड एट अ गिवन टाइम की वजह से पूरा का पूरा फंडा यहाँ पे अलग हो गया था, ठीक है। मरियम एंड नोहा, इक्विलिब्रियम इज डन इन योर स्कूल? No, sir. Right now we are doing it. अच्छा नोहा, व्हाट अबाउट यू? Even we're doing it. हाँ समझ में आ रहा है। अच्छा दोनों सेम स्कूल में ना, हम तो भूल ही जाते हैं। कैसा चल रहा है स्कूल में? बाउंसर जा रहा है या फिर बैट और बॉल में टच हो रहा है?
मतलब इन द सेंस आप लोग अगर क्रिकेट खेलते हैं तो बाउंस करना मतलब चीजें ऊपर से चली जाना, है ना, ऊपर से चला जाना। स्कूल में समझ में आ रहा है क्या चल रहा है इक्विलिब्रियम में? ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा टीचर को अब, ठीक है? यू नो वेयर टू फोकस नाउ। हम आपको ना यही Yes. सिखाएंगे इक्विलिब्रियम में कि आपको फोकस कहाँ करना है, ठीक है? चलिए, राइट दिस Yes. डाउन। आसान सा सवाल था, लेकिन क्या बच्चे ना पागल हो जाते हैं ऐसे सवाल में, है ना? दिखने में आसान, डायरेक्शन, ओ भाई साहब, क्यू के इज इक्वल टू बी इंटू सी बाई ए स्क्वायर, नया नया जोश। बिल्कुल 11th स्टैंडर्ड का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। और आता है फिर के इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन में दिया हुआ है के इज इक्वल टू 10 2 इंटू 10 माइनस 3, और फिर सर नोचेंगे अपना, ओ माय गॉड इक्विलिब्रियम ये भी बेकार है, क्या ही है केमिस्ट्री में। छापी छापी जल्दी, छापी जल्दी। इक्विलिब्रियम में सवाल भी बहुत सवाल है, मतलब एनसीईआरटी अगर आप कर लेना अगर इक्विलिब्रियम का पूरा, तब भी एनी गेसेस मरियम, कितने सवाल होंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज में? मरियम? 100. अरे भाई साहब मरियम ने पहले ही मतलब कोई मौका नहीं देना है 73, देयर आर 73 क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज, ठीक है? तो इससे आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि सवालों का चैप्टर है इक्विलिब्रियम, है ना? समझने की चीजें तो हैं, देखिए समझने की चीज कितनी छोटी छोटी सी चीजें जो हम मतलब लिखा भी नहीं पाएंगे आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, है ना? समझने की चीज की के जो होता है जब 1/1000 है तो इसको आप समझिए कि प्रोडक्ट में कम है, रिएक्टेंट में ज्यादा है, ठीक है? लेकिन है ये सवालों का चैप्टर। लिख लिया आप लोगों ने ऐसा नोटिस नहीं? Yes, sir. So, Yes, sir. ठीक है, अगला लिखिए। थर्ड एप्लीकेशन, इसमें और सवाल है तो हम आपको करा देते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। एप्लीकेशन थर्ड वाला बाद में कर लेंगे बिकॉज उसका न्यूमेरिकल्स थोड़ा लंबा जाता है, ठीक है? इफ आई हैव एनी अदर क्वेश्चंस देन वी विल डू दैट नाउ। डायरेक्शन का अगर है, डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, एक्सरसाइज एक सवाल है, क्लियर आंसर है ना? they have given you mole and also they have given you the volume, ठीक है? सो बेसिकली आप देखिए, अगर कंसंट्रेशन बोले ना, N2 का कंसंट्रेशन हम लिख देते हैं, उसके हिसाब से आप बाकी का लगा लीजिएगा। अब मिक्स, लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। अभी आप लोग प्लीज कीप योर पेन साइड, ओके? कीप योर पेन साइड, पेन छोड़ दीजिएगा बिल्कुल, है ना? A mixture of 1.57 mole of N2, 1.92 mole of H2 and 8.13 mole of ammonia is introduced into a 20 liter vessel, 20 liter reaction vessel at 500 Kelvin.
तो अगर N2 की हम बात करें तो N2 का नंबर ऑफ मोल्स है 1.57 मोल एंड इट इज इनसाइड अ वेसल विच इज 20 लीटर्स। तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा होगा, बिकॉज इट इज अ गैस, इट विल बी ऑक्यूपाइंग द होल कंटेनर, दैट इज 20 लीटर्स। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ N2। ठीक है, ये मोलारिटी हो जाएगी इसकी। सिमिलरली जैसे जैसे आप सवाल पढ़ते जाएं, अब मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 भी लिख लीजिए, मोलारिटी ऑफ H2 एंड द मोलारिटी ऑफ अमोनिया। ठीक है, and then use these values when you are calculating the QC. ठीक है, at this temperature the equilibrium constant for K, the equilibrium constant इतना दिया हुआ, उन्होंने ये नहीं कहा कि these concentration are the equilibrium concentration, they are just saying that at this temperature पे equilibrium constant बुक में दिया गया है वो कितना 1.7। you will calculate the Q, फिर Q को आप कंपेयर कीजिएगा किससे, K से, ग्रेटर है लेस है, उसके बाद बताइएगा डायरेक्शन क्या है। ठीक है, आराम से जरा इस सवाल को कीजिए।
देयर इज जस्ट वन थिंग रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम चैप्टर, जिसके बारे में आई विल से like I really don't know why the questions are in this manner. Not only questions तो ठीक है, the values that they give ना NCERT जो values देता है वो बहुत ही वाहियात values होते हैं जो cancel भी नहीं होते हैं. I mean, no matter how much you try, either you have to go through the approximation pathway या फिर आपको exactly multiply divide सब कुछ करना पड़ेगा. ठीक है. And I really think it is really unnecessary. At this point बच्चों का जो डर है वो कैलकुलेशन गलत होने पे नहीं रहना चाहिए. तो या तो सीबीएसई आई रियली थिंक सीबीएसई शुड इंक्लूड कि भाई कैलकुलेटर इस्तेमाल करो, पर इट इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज जब जेई मेंस नीट वगैरह में कैलकुलेटर्स नहीं अलाउड है तो फिर यहाँ कैसे होगा. ठीक है, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. वन थिंग दैट एनसीईआरटी शुड डू विद द वैल्यूज दैट दे गिव ना, कि वहां पे वो कुछ सही वैल्यूज दे दें so that the calculations are easy. Now, why I think they are not giving the values which are multiplyable easily, which are divisible, because they are giving the exact value जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट में किया हुआ है. ठीक है, तभी ये बहुत वियर्ड वैल्यूज आते हैं. बट आई एम रियली सॉरी फॉर दिस. देर आर पीपल हु आर फ्रॉम माई फील्ड ओनली ना, केमिस्ट्री में ही पढ़े लिखे होंगे जिन लोगों ने एनसीईआरटी बनाई है. ऑन बिहाफ ऑफ देम आई एम रियली सॉरी. आप जैसे नन्हे बच्चों को इतनी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं. बट वन थिंग इज फॉर श्योर, जब बोर्ड्स है ना, सीबीएसई का जो बोर्ड है वो जब क्वेश्चंस पूछता है अपने बोर्ड एग्जाम में, ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ के एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहे हैं, ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो वहां पे कैलकुलेशंस हमेशा इजी रहते हैं. वहां पे ऐसे वियर्ड कैलकुलेशंस नहीं आते हैं. ठीक है, तो एनसीईआरटी का दुख आपको सहना पड़ेगा थोड़ा. बट बोर्ड्स में इंशाल्लाह जो ट्वेल्थ आप लोग जाएंगे तो वहां पे आपके कैलकुलेशंस आसान रहेंगे. ठीक है, वो जनरली ऐसे वैल्यूज देते हैं जो कि कैंसिल वैंसिल हो जाते हैं. चलिए, अच्छा किसी का आंसर आया है? चलिए, आंसर नहीं आया अभी तक किसी का. आलिया मरियम नोहा, बताइए किसी का आंसर कुछ आया नजदीक, एटलीस्ट द वैल्यू ऑफ क्यू. हाँ गाइस, I got the value of Q as 54.2. 54.2. क्या लिखा आपने, जरा इसमें बताइए, न्यूमरेटर में क्या लिखा है? 8.13 by 20. दैट्स इट, और कुछ? In denominator, नहीं नहीं नहीं, 1. न्यूमरेटर में और कुछ लिखा है नहीं, बस या फिर इतना ही लिखा है? इतना ही. अम, कुछ दिखा नुहा? नुहा, आपको कुछ दिखा? Yes, sir. ठीक है, इसको बस एक और बार मल्टीप्लाई कर देंगे ना, पूरा काटने की जरूरत नहीं है आपको. 8.13 डिवाइड बाई 20 आपको एक बार और मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ना, बस दैट्स इट. और नीचे में आपके पास यू हैव n2, दैट इज 1.57 डिवाइड बाई 20, which will be multiplied by h2 is what, 1.92. 1.92 divided by 20 into 1.92 divided by 20. ठीक है, एंड सी, हम तो हैं टीचर. देखिए, मेरा तो ना पेपर चेक होने वाला है, ना ही मेरा कुछ होने वाला है. सो आई यूजुअली अप्रोक्सीमेट, हम तो भर के अच्छे से हम आई डू अप्रोक्सीमेशन बहुत बढ़िया से, है ना. तो बट थोड़ा लॉजिकल करते हैं, थोड़ा लॉजिकल इन द सेंस कि 1.92 को बढ़ा के हम 2 लिख देंगे और 8.13 को हम घटा के 8 लिख देंगे. ठीक है, तो ये हम बहुत मतलब सही चीज नहीं कर रहे हैं, खराब चीज है. बिकॉज न्यूमरेटर में हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और डिनोमिनेटर में हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं. तो ओवरऑल वैल्यू जो आने वाली है ना, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी लेस. ठीक है, सो दैट इज नॉट अ गुड अप्रोक्सीमेशन. तो करते क्या है एक काम, और दूसरा कोई ऑप्शन है भी नहीं यार. 8.13 ऐसा नंबर है, यहाँ पे 1.9 है, यहाँ पे 1.57 है. 1.57 को ही बढ़ाना पड़ेगा, 1.57 को घटा के 1.5 कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम घटा देते हैं.
ठीक है, लेकिन फिर भी आपका वो इफेक्ट आएगा नहीं। चलिए स्टिल कुछ अप्रोक्सीमेट करके ही लाएंगे ना, ऐसे तो बिल्कुल भाई मतलब मजदूर नहीं है ना आदमी, मजदूरी थोड़ी ना करनी है। ठीक है, यू हैव टू लर्न थिंग्स। 8/20 8/20 कर लिया, इसको हम थोड़ा सा घटा के 1.5 कर देते हैं, इवन तो अप्रोक्सीमेशन में वो नहीं आएगा, बट क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो बंधन है वो थोड़ा सा सही रहे, इस वजह से 20 इंटू आपका 1.92, 1.92 में भाई 2 कर दो इसको, दिल को मार गया बिल्कुल। 1.92 क्या कर दिया, 2 कर दिया, 2/20 इंटू 2/20, तो 20 20 20 20 ये कट गया, और ये डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, तो ये 20 ऊपर चला जाएगा, है ना, इसको 20 नहीं भेजते, इसको 10 करके भेजते हैं ऊपर। तो दिस विल बी 8 इंटू 8 दैट इज 64। ठीक है, और इंटू 10 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 2 3। सही है, क्या चलेगा इस, चलेगा ना? Yes, sir. ठीक है, अब देखो 3 2 जा, राइट, एंड देन 3 1 जा, है ना, पॉइंट कुछ तो आएगा 103 इंटू 10, यानी कि 213। ठीक है, और जो कैलकुलेट करके वैल्यू आ रही है दैट इज 238, मतलब जो कैलकुलेटर में हमने किया ना उससे आ रही वैल्यू 238, तो आसपास ही है, मतलब चलेगा ना काम? क्या ख्याल है, काम Yes, चलेगा? sir. काम तो चलेगा। हम लोगों को तो बेसिकली ये बताना था, सवाल के हिसाब से अगर हम देखें, सवाल के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या पूछा हुआ इन्होंने, इज द रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, तो ना भाई, क्यू तो जो है वी विल से दैट क्यू इज नॉट इक्वल टू के, है ना, के कितना था हमारे पास, के वाज 1.7 इंटू 2 यानी कि 170, 170 राइट, ये सुनो, 1.7 इंटू 10 टू इंटू 100 कितना हो जाएगा, 170। सो सिंस क्यू इज नॉट इक्वल टू के, so it is not equilibrium, and also q is greater than k, therefore backward reaction will go in the backward direction, reaction will go in backward direction। ठीक है, चलिए छापिए इसको। ठीक है, and आलिया आपको ना ऐसे मतलब अप्रोक्सीमेशन आपको ऐसे करने पड़ेंगे, ठीक है आलिया? यस सर, आप, अप्रोक्स करके ही करता हूँ। हाँ अप्रोक्सीमेट करते हैं ना, वेरी गुड। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो आप तो बिल्कुल मत कीजिएगा, बिकॉज आपको सिर्फ नीट देना है ना, इनको करना पड़ेगा, मरियम और नोहा को करना पड़ेगा। अगर बोर्ड्स होता है ना मरियम एंड नोहा 12th में, तब तो हम आपको ही बोलते हैं अप्रोक्सीमेट करो, और लिखो वहां पे बोल के अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, बोर्ड्स में सीबीएसई इज जनरली वेरी लीनियंट इन दिस मैनर। Sir, I don't know how to approximate. हाँ, तो कौन सा जो बच्चा पैदा होता है उसको अप्रोक्सीमेशन आता है क्या? धीरे धीरे आप देखते रहिए ना, इसमें हम बहुत सारी जगह अभी आपको समझ में आया अप्रोक्सीमेशन हमने कैसे किया? A नहीं bit. समझ में आया, अब बिट समझ में आया। देखिए 8 वाले को तो 8.13 था ना, तो Yes. 9 लेना सही नहीं है, तो इसको 8 लिया हमने, इसको भी 8 लिया। ठीक है, 1.92 का अप्रोक्सीमेट 22 होगा। अब 1.57 का क्या होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था, राइट, 1.6 सही है, Yes. Yes. लेकिन हमने 1.5 लिया। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का थोड़ा सा रिश्ता को समझिए, डिनोमिनेटर को अगर आप बढ़ाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, Yes. और न्यूमरेटर को जब घटाएंगे तब भी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, घट Uh, जाएगी, yes. है ना, न्यूमरेटर अगर घटेगा तो ओवरऑल वैल्यू घट जाएगी ना। नाउ व्हाट वी, व्हेन वी वर अप्रोक्सीमेटिंग, वी वर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर एंड वी वर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर। उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा हमने डिनोमिनेटर में से एक वैल्यू को घटा दिया, समझ में बात? ठीक है, Yes, डिनोमिनेटर में sir. हमने बढ़ाया था 1.92 से 2, तो अभी हमने यहाँ पे घटा दिया। अगर ये